based on the same theme. The title of the story is The Purple Children. This story is written by Ellis Peters, which is the pen name of Edith Pargerter. Edith Mary Pargerter, born in 1913, was an English author who wrote historical fiction. As Peters, she mostly wrote detective fiction and used other names for other genres. She is best known for her murder mysteries, especially for her medieval detective series, The Cadfael Chronicles. Edith Pargerter's short stories include The Purple Children, which is about British occupation of Cyprus. Cyprus is an island country in the eastern Mediterranean, which formerly came under the British rule during the year 1914. This story highlights the protest of the locals, especially the children, against the British rule. The story begins with a young 18-year-old British sentry who is on duty one evening at the rear entrance of the town hall. He is startled by a local girl of 15 calling for her cat. He urges her to return home due to the curfew imposed on the town. But she insists that she must find her cat because it runs away. Her cat cannot be told to observe the curfew. The girl pleads with the sentry, certain that she can find her cat if he will just let her through the gate. The sentry is aware that she is close to tears, and considering the fact that he has been told to be polite to the natives, he decides that there was no harm in letting her in. Besides, she was a young thin girl, and what possible threat could she pose? Hence he opens the gate and lets her through, staying close to her. Turning his back on the gate, which he is supposed to be protecting, he follows her. When he sees the cat, he is relieved, but it takes a further 10 minutes before they can corner it and catch it. The young girl thanks him, and almost immediately the girl's real purpose is revealed. For the sentry hears a boy jump down from the flagpole, and then the girl and the boy run away, throwing the cat on the sentry's face. The sentry had tried hard to catch them, had even fired his paintball gun on them, but they managed to escape into the dark, silent streets. The children had replaced the British flag with their own, and there was a commotion in the courtyard, for the sentry had raised an alarm and the major was there too. The sentry, being too frightened by his own side, seemed to take side of the fugitives and made every possible excuse he could think of. To begin with, he points out that she was only a little girl, and then even goes on to say that it was just a flag. But the major, who was experienced, he knew the local style of warfare and quickly assessed the situation. He came to the conclusion that he will catch them in no time because of the purple dye with which the sentry had splashed them. The next morning he visits the grammar school, but what he witnesses there leaves him shocked. Read the story to find out what the partisans, that is the children who were protesting against the British, do to outsmart the major. The author has made use of rich literary devices like simile, onomatopoeia, color imagery, and irony, which we have already discussed in detail in The Monkey's Paw. The color imagery is very obvious throughout the story. The color purple symbolizes royalty and mourning. The purple represents the power that the British have over the natives, and the purple paint splatters representing the soon-to-be dead or punished. The British spraying the purple vegetable dye on the other natives is showing that they are putting a death tag on them because of the way they acted. Hence, the color imagery plays a major role in the story. Besides color imagery, we have all three types of verbal irony as well. Verbal irony,
The first example we see of it when the girl thanks the sentry and tells him that he had been very kind. But in reality, she is not grateful. In fact, she is proud that she had fooled him. Then we have situational irony as well. We have the major who is highly intelligent, and we expect him to quickly identify the culprits and punish them. On the contrary, we see that he is outsmarted by the 15-year-old children. Dramatic irony occurs at the end of the story when all the children are colored with purple dye. We know who the culprit is, but the major has no way of finding out. So with the help of these devices, Edith Bargerter has beautifully and explicitly brought out the theme of the story, that strength lies in numbers and unity. बेटा ये आपका चैप्टर 15 है, द पर्पल चिल्ड्रन, ठीक है। आई हैव गिवन द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बिफोर। इसका इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा चुका है आपकी पहली इससे पहले। अब इसको थोड़ा सा उर्दू में समझना ज़रूरी है ताकि आप ओवरऑल इसकी स्टोरी को समझ सकें। तो इसकी स्टोरी ये है कि ये उस ज़माने की स्टोरी है जब इंडिया में या उस वक्त इंडिया पाकिस्तान दोनों इंडिया ही कहलाते थे, तो उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और जितने भी हिंदू हैं वो इंडिया में रहने वाले लोग हैं वो ब्रिटिश के यानी कि अंग्रेज़ों के कंट्रोल में या उनके दौरे हुकूमत में थे। तो उस वक्त ब्रिटिश ने या अंग्रेज़ों ने कर्फ्यू लगा रखा था और बहुत सख्त कर्फ्यू था, हर तरफ अंधेरा था और एक पुलिसमैन जो है जो वहाँ पे गार्ड था जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, उससे कुछ आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ एक छोटी मासूम बच्ची की थी। उस लड़की की आवाज़ जब उन्होंने सुनी तो वो उसके पीछे आए और उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की और उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ अंधेरी रात में, इस वक्त इतना सख्त यहाँ पे अंधेरा है और कर्फ्यू लगा हुआ है और किसी का बाहर निकलना अलाउ नहीं है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो उस लड़की ने गार्ड से कहा कि मेरी बिल्ली जो है उसकी जो पेट कैट थी यानी जो उसने पाल रखी थी वो उससे कहीं गुम हो गई है और वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकली थी और वो उसे इतनी प्यारी थी कि उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि कर्फ्यू लगा है या बाहर अंधेरा है या जाएगा। अब वो लड़की जो है वो गार्ड को कहती है कि उनसे एग्री करती है कि ठीक है मुझे तो मालूम है कि कर्फ्यू लगा है लेकिन मेरी बिल्ली को तो नहीं मालूम कि कर्फ्यू लगा है। अगर मैं उसे समझा सकती तो वो घर में रहती, वो ना जाती बाहर, लेकिन अब वो बाहर निकल गई है तो आई हैव टू फाइंड आउट हिम हर कि हम मुझे उसको ढूंढना है, इसीलिए मैं बाहर निकली हूँ। अच्छा, यहाँ जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं कि गार्ड जो है वो उस लड़की को वार्निंग दे रहा है, उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो आगे ना जाए, अगर वो आगे जाएगी तो उसे पकड़ लिया जाएगा। और फिर गार्ड जो है वो उसे बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है, बहुत मजबूती के साथ उसे पकड़ लेता है ताकि वो आगे ना जाए, लेकिन वो अपनी बिल्ली की मोहब्बत में बिल्कुल उसकी बात नहीं सुनती और उससे हाथ छुड़ाकर भाग जाती है अपनी बिल्ली को ढूंढने के लिए। अब वो लड़की जो है वो गार्ड से हाथ छुड़ाने के बाद भाग जाती है अपनी बिल्ली के पीछे और वो आगे जाकर देखती है कि एक पुल है और वहाँ पे एक लड़का उसे मिलता है जो उस ब्रिज पे फ्लैग लगा रहा है और वो लड़का जो है वो ब्रिटिश आर्मी का ही है और वो वहीं का रिहायशी है, वहीं रहता है और वो वहाँ पे पुल पे फ्लैग लगा रहा होता है। अब ये लड़की जो है वहाँ जाती है और वहाँ जाके इसे इसकी बिल्ली तो मिल जाती है लेकिन ये वहाँ जाके गिर जाती है और गिरती है तो कुछ अब किसी तरह से एक्सीडेंटली जो है इसके ऊपर कोई पर्पल कलर लग जाता है और ये बच्ची पर्पल हो जाती है और वो लड़का फ्लैग लगा रहा होता है तो वो देखता है कि लड़की यहाँ आई है और ये यहाँ पे आके गिर गई है। अब वो लड़का जब उस लड़की को देख लेता है कि ये लड़की इतने सख्त कर्फ्यू और इतने सख्त अंधेरे में यहाँ पे कैसे नज़र आ रही है, अब वो लड़की गिर जाती है और उस पर पर्पल कलर भी लग जाता है तो वो लड़का उसकी मदद के लिए उसके पास आता है, उसे उठाता है और उससे कहता है कि हमें फ़ौरन यहाँ से जाना होगा वरना ब्रिटिश आर्मी उसे पकड़ लेगी। अब वो लड़का उसकी मदद करता है,
ठीक है, और हिफाजत के साथ उसे उसके घर पे पहुंचा देता है और उसकी बिल्ली भी उसे मिल जाती है। लेकिन क्योंकि गार्ड उस लड़की को देख चुका होता है और उसे मालूम होता है कि कोई लड़की भागकर आगे तक गई है, इसलिए वो उसका पीछा करते हैं और उसको मालूम हो जाता है कि यहाँ कोई लड़की आई थी और यहाँ से फिर वो कहीं सेफ जगह पे चली गई है या अपने घर पे जा चुकी है। और फिर ये मामला जो है वो कोर्ट तक जाता है और कोर्ट में मामला जाने के बाद फिर उस लड़की को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम बताओ कि तुम्हारी मदद किसने की। और उसके सामने बहुत से लोग खड़े होते हैं और उन्हीं में वो लड़का भी खड़ा होता है जिसने उसकी मदद की होती है, लेकिन वो उसे, जाहिर सी बात है जब उसने उसकी मदद की है तो वो उसे सज़ा से बचाने के लिए उसे पहचानने से इनकार कर देती है और वो कहती है कि इनमें से कोई नहीं है जिसने मेरी मदद की थी। इस तरह से वो उस लड़के की जान बचा लेती है। ठीक है, ये मैंने आपको समराइज़ करके इसकी स्टोरी बताई है उर्दू में ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। ठीक है, इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जा चुका है और अब ये इसका उर्दू का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी स्टोरी जो है ओवरऑल समझ में आ गई होगी और स्टोरी समझ में जब आ जाएगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा आगे एक्सरसाइज को करना और उसको समझना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके वर्ड मीनिंग की तरफ आते हैं। वर्ड मीनिंग्स एज यू नो गिवन इन योर बुक। ठीक है, बुक से आपको कॉपी करने हैं और इसमें पहले लिखा है रन इट टू अर्थ, टू फाइंड इट इसकी मीनिंग है टू फाइंड आफ्टर सर्चिंग फॉर इट, यानी किसी चीज़ को ढूंढना, तलाश करना। फजिटिव somebody who is running away फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम जस्टिस, यानी कि वो इंसान, इसको अगर मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन करूं कि किसी का कानून से भाग जाना, फरार हो जाना। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है रैनकोर, बिटरनेस एंड रिसेंटमेंट। ठीक है, बिटरनेस, रैनकोर, बिटरनेस एंड रिसेंटमेंट, इसका मतलब है कि किसी से नफ़रत करना, किसी के लिए बुराई रखना, किसी को नापसंद करना, ये मीनिंग है इसके। ठीक है, आई रिपीट, रैनकोर, बिटरनेस एंड रिसेंटमेंट। द अनदर वर्ड इज पार्टिसंस। पार्टिसंस मीन्स मेंबर ऑफ अ ग्रुप दैट हैज़ टेकन अप आर्म्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इसका मतलब है कि वो ऐसा एक ग्रुप जो किसी की हिमायत या किसी की तरफदारी करे और आर्म्ड भी हो। आर्म्ड का मतलब होता है असला होना, असला बरदार होना किसी के पास। ठीक है, उस किसी की मदद के लिए वो ग्रुप जो है वो उसकी तरफदारी या हिमायत में खड़ा हो। ठीक है, पार्टिसंस, आई रिपीट, पार्टिसंस, members of a group that has taken up armed resistance against occupying enemy forces। उसके बाद है आपका punctilious। punctilious means very careful about the convention of correct behaviors। अब उसके बाद आपका आ रहा है एंटागोनिज्म। इसका मतलब है हॉस्टिलिटी और हेटेड। राइट, आई रिपीट, punctilious, very careful about the convention of correct behavior, antagonism, hostility or hatred। now we come to the question answers। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बेटा कट कर दिया गया है क्योंकि ये थोड़ा लेंदी था और ये आप लोग कोरोना की वजह से जो आप लोगों को छुट्टियां दी हुई हैं तो जो ज़रा लेंदी काम है उसे हमने फ़िलहाल ड्रॉप कर दिया है। इसलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है वाई हैड द बॉय एंटर्ड द कोर्ट यार्ड एंड वॉट हैड ही डन।
वो बॉय जो है लड़का वो कोर्ट यार्ड में क्यों आया था और उसने क्या किया? द आंसर इज द बॉय हैड एंटर्ड द कोर्ट यार्ड टू होस्ट देयर नेटिव फ्लैग एंड ही हैड डन इट विदाउट बीइंग नोटिस्ड। ठीक है, बॉय जो है वो कोर्ट यार्ड में एंटर हुआ था एक फ्लैग लगाने के लिए और उसने किसी चीज़ को नोटिस नहीं किया था और वो फ्लैग लगाने आया था। I repeat, question number 2. Why had the boy entered the courtyard and what had he done? Answer is, the boy had entered the courtyard to hoist their native flag and he had done it without being noticed. Okay? Now question number 3. Question number 3 is, how does the author describe how the fugitive disappeared into the night? इसका आंसर है, the author described the fugitives disappearing into the night as being sneaked away into the silence and darkness of the little street. अब वो रात में बिल्कुल अंधेरा हो जाता था, इसलिए कर्फ्यू की वजह से तमाम लोग जो है वो गायब हो जाते थे, मतलब अपने घरों में चले जाते थे। तो ऑथर जो है, ऑथर कहते हैं राइटर को, कहानी या कोई भी चीज़ लिखने वाले को ऑथर कहते हैं। तो ऑथर ये डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं इस आंसर के अंदर। ठीक है, आई रिपीट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हाउ द फ्यूजिटिव डिसअपियर्ड इनटू द नाइट? द आंसर इज, the author describes the fugitives disappearing into the night as being snatched away into the silence and darkness of the little streets. Now question number 5. Question number 5. What are partisans? What was the role played by the children as partisans? पार्टिसन्स की मीनिंग आपको बता दी गई थी। ठीक है, हिमायती वो ऐसे लोगों का ग्रुप जो किसी की हिमायत करने के लिए आते हैं और वो आर्म्ड भी होते हैं, यानी कि उनके पास ज़रूरत पड़ने पे असला भी होता है। ठीक है, अब इसका आंसर है, आपसे पूछा है कि व्हाट आर पार्टिसन्स? पार्टिसन्स क्या हैं और उनका क्या रोल था, उन चिल्ड्रंस का क्या रोल उन्होंने प्ले किया एज ए पार्टिसन्स। तो partisans are members of a group that has taken up armed resistance against the occupying enemy force. The children were supposed to hoist the native flags on enemy territory. Right? उन्होंने बताया कि बच्चों ने एक पार्टिसन्स का रोल प्ले किया उसको बचाने के लिए, उस लड़की को, और जो उस लड़की ने उस लड़के को बचाया, सेव किया, उसके तौर पे उन्होंने पार्टिसन्स का रोल प्ले किया है। आई रिपीट, व्हाट आर पार्टिसन्स? व्हाट वाज द रोल प्लेड बाय द चिल्ड्रन एज पार्टिसन्स? द आंसर इज, पार्टिसन्स आर मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप that has taken up armed resistance against the occupying enemy force. The children were supposed to hoist the native flags on enemy territory. Okay students, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है और आपको क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छी तरह से समझा दिए हैं। Now you have to done these question answers and word meanings in your copies, in your notebooks, and bring your copies for checking on given days. ये सब काम आपको कॉपी में करना है, वक्त पे अपना काम मुकम्मल करना है और फिर दिए गए वक्त पे लाके आपको चेक करवाना है। और इसके बावजूद अगर आपको कोई भी क्वायरी है, कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम लगती है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, यू कैन आस्क मी ऑन योर ग्रुप। ठीक है, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू देयर। ओके, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।